Hello everyone. In the previous lecture we have discussed or seen quality factor, bandwidth, upper and lower half power frequency in case of series RLC circuit. Let's see its quick overview. So in case of series RLC circuit, we get resonant frequency omega naught is equals to 1 by root over LC. Quality factor, we have got Q is equals to omega L by R or 1 by omega RC or 1 by R root over L by C. You can write this also as XL by R or XC by R or VL by VR or VC by VR. So from these two formula, see, this VL and VC is nothing but the reactive component of voltage, isn't it? And this VR is active component of voltage. So you can write quality factor as reactive component of voltage divided by active component of voltage. Okay, next term, that is, we have got voltage across inductor is equals to JQV. This is what amplification factor, and VC as minus JQV, means by this factor voltage across inductor and voltage across capacitor got amplified, means by quality factor, or this is also called amplification factor. Now what about bandwidth? Bandwidth we have got as omega 2 minus omega 1, and this is R by L in radian per second and R by 2 pi L in hertz. Then we saw the relation between resonant frequency and upper and lower half power frequency, that is omega naught is equals to under root omega 1 into omega 2. Again we have seen that the value of these half power frequencies as omega 1 we have got as minus R by 2L plus root over R by 2L square plus 1 by LC, and omega 2 as R by 2L plus of R by 2L square plus 1 by LC, isn't it? Next what we have seen that for high Q circuits, means high quality factor circuit, so for high Q circuit we have seen omega 1 approximately, means this lower half power frequency approximately it is getting at omega naught minus bandwidth by 2, and omega 2 as omega naught plus of bandwidth by 2. From here we have concluded that resonant frequency is the arithmetic mean of both half power frequencies when we have quality factor greater than 10, means high quality factor circuit. Last thing, we have seen that Q is equals to omega naught by bandwidth and zeta is 1 by 2Q. So these all are the value in case of series RLC circuit. Let's see all these parameter in case of parallel RLC circuit. So write down the heading as parallel resonance or anti-resonance. So let us first draw the parallel RLC circuit. So inductor and this all three are connected in parallel. This voltage V, I, current through resistor is IR, through inductor is IL, and through capacitor is IC. Okay. So at resonance, see, in case of parallel RLC circuit, at resonance what happened? The current through inductor and current through
capacitor, its magnitude gets equal, means magnitude of IC is equals to magnitude of IL at resonance. So IC you can write it as V by magnitude of XC and this as V by magnitude of XL. So from here 1 by XC magnitude is equals to 1 by magnitude of XL, isn't it? So 1 by XC you can write it as beta C is equals to beta L, isn't it? So at resonance in parallel RLC circuit, what happened? Beta C, magnitude of beta C got equal to magnitude of beta L. Okay. Now if you want to plot its phasor diagram, in parallel what is common? Voltage is same in all three component. So we take voltage phasor as reference, V phasor. What about IC? IC will be leading to V by how much? 90 degree. So this is our IC phasor, and IL just opposite, that is lagging from V phasor by 90 degrees. So this is our IL phasor, and IR phasor will be in same phase as V. Okay. So what happened? See, at a resonance, this magnitude and this magnitude got equal. So this phasor and this phasor will cancel each other. So overall I will be nothing but the current through the resistor, that is IR is equals to I. Okay. So this is our resultant current. So from here beta C equals to beta L. So beta C is what? Omega naught C. Omega naught is resonant frequency and this is 1 by omega naught L. So omega naught square you are getting from here also as 1 by LC. So in case of parallel RLC circuit at resonant frequency we are getting as same as our सीरीज. इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट में जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी सेम यहाँ पे भी वही निकल के आ रही है. सो दिस इज इन रेडियन पर सेकेंड and if you divide it by 2 pi this will convert it into hertz. So this is our resonant frequency in terms of radian per second and in terms of hertz. Okay. तो चलो अब कुछ ग्राफ्स देखते हैं कि अगर ओमेगा की वैल्यू हम लोग वैरी कराएंगे तो एडमिटेंस, बीटा, करंट और पावर फैक्टर ये सब कैसे वैरी करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एडमिटेंस वर्सेस ओमेगा ग्राफ. राइट डाउन mod of y वर्सेस ओमेगा. सो y की वैल्यू मीन्स एडमिटेंस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ओवरऑल g प्लस j ऑफ बीटा c माइनस बीटा l, isn't it? So magnitude of g we will get it as, no, first of all write down the value of beta c and beta l. Beta c is omega c minus and this is 1 by omega l. Magnitude we will get it as g square plus of omega c minus 1 by omega l square. So if you plot its graph you will get it as like this. Okay, this is not symmetrical. I already told you that frequency response is not generally symmetrical, that's why we didn't get symmetrical graph. This point is our resonant frequency, means at omega is equals to omega naught. This is the lowest of the admittance value and this y mean is nothing but equals to g. When at resonance what happened? This omega c got equals to 1 by omega l. These two values got equal. So overall this will become 0. So this will become 0 और ये क्या हमारी add term means प्लस में है इसके साथ g के साथ. तो अगर ये 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, isn't it? So y minimum we are getting it as g at resonant frequency. Now देखो एक चीज़ और, हम लोग रीजन डिफाइन करते थे जब हमने सीरीज आरएलसी किया होगा तो उस टाइम पे भी हमने इस रीजन को डिफाइन किया था. व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट मीन्स दिस रीजन इज व्हाट?
omega less than omega naught, and this reason is omega is greater than omega naught. See what happened, जब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट होगी, तो अगर आप देखो यहाँ ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, इसे स्क्वायरिंग करो, दिस you will get omega naught square is 1 by LC. So you can write omega c is less than 1 by omega L. Omega c is less than 1 by omega L. That means that value of beta c is less than value of beta L, isn't it? And when beta c is less than beta L, this term will be negative, isn't it? तो ये वाली जो हमारी रीजन मिलेगी वो कौन सी रीजन मिलेगी, इंडक्टिव नेचर की मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे जो बीटा एल की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा पूरे सर्किट पे, इंडक्टिव नेचर का होगा. सो दिस इज लैगिंग इन नेचर. पावर फैक्टर अगर इंडक्टिव होगी ओवरऑल हमारी सर्किट, तो पावर फैक्टर लैगिंग होगी, एंड दिस रीजन इज ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर. ये जो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली है वो क्या होगी, वो यूनिटी पावर फैक्टर होगी यहाँ पे, इजंट इट? ये तो ज़ीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल जो हमारी सर्किट होगी वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगी. अब देखो इसे हम क्या और बोल सकते हैं, इंडक्टिव इन नेचर, एंड दिस इज कैपेसिटिव इन नेचर. ओके, so this is about y versus magnitude of admittance versus omega graph. Now let us move to beta versus omega graph. Beta की value, what we have beta as beta c minus beta l, and this is nothing but omega c minus 1 by omega l, isn't it? तो इसकी अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो बीटा सी, तो सिंपल सा बीटा सी का देखो, बीटा सी की अगर ग्राफ लोगे तो ये ऐसे होगा, और ये 1 बाई ओमेगा एल है, तो इसका अगर आप अलग से ड्रॉ करोगे बीटा एल का ग्राफ, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है. और हमें ग्राफ किसकी प्लॉट करनी है, बीटा की करनी है, विच इज ओमेगा सी माइनस ऑफ 1 बाई ओमेगा एल. तो इसकी जो ग्राफ आएगी, दिस विल बी लाइक this is beta, this is beta c, and this is beta l. यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला जो रीजन, ये यहाँ वाली जो पॉइंट होगी ये क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट. अगर एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट क्या होगी, बीटा सी माइनस बीटा एल, ज़ीरो हो जाएंगी, इजंट इट? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, हमें ज़ीरो मिल रही है. और वैसे ही इधर का रीजन, दिस इज ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, एंड दिस इज ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट. दिस रीजन, अगेन दिस रीजन विल इंडक्टिव इन नेचर, एंड दिस इज कैपेसिटिव इन नेचर, एंड दिस इज लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, एंड दिस line is at resonant frequency, it is unity power factor. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमारी चीज़ें उल्टी हो जा रही है. जैसे देखो सीरीज वाले में इस वाले रीजन में क्या लीड कर रहा था, मीन्स कौन सी टर्म डोमिनेटिंग थी, कैपेसिटिव नेचर डोमिनेटिंग थी, और इधर साइड वाले रीजन में कौन सी डोमिनेटिंग थी, इंडक्टिव नेचर डोमिनेटिंग थी. बट यहीं पे देखो पैरेलल रेजोनेंस के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है, दैट इज इस वाले रीजन में इंडक्टिव नेचर एंड इस वाले रीजन में कैपेसिटिव नेचर. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ. सो राइट डाउन आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ. I versus omega, magnitude of current. So magnitude of current, we have V by Z, V by magnitude of Z, or V by magnitude of Y. So V into, this is magnitude of Y is G square plus of omega C minus 1 by omega L square. तो इसकी अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, so you will get it as like this. This is at resonant frequency, this point, and this is the minimum point. So this is I minimum is equals to V into
g. So this point is nothing but the minimum point. सीरीज वाले में सीरीज रेजोनेंस सीरीज आरएलसी के केस में क्या हो रहा था, ये ऑपोजिट बन रहा था, मीन्स कर्व हमारी ऐसे बन रही थी और ये जो हो रहा था वो हमें आई मैक्सिमम मिल रही थी, इजंट इट? दिस इज ओमेगा, अगेन दिस रीजन and this region, this is inductive and this is capacitive in nature. Lagging power factor and here it is leading power factor. यहाँ पे क्या होगा, unity power factor. Okay, now another is fourth one, you can write phi versus omega. This is power factor versus omega graph. See, when omega is less than omega naught, y is overall beta is what, beta c minus beta l. तो इस केस में बीटा एल ग्रेटर देन बीटा सी है, तो ओवरऑल बीटा क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी. सो ओवरऑल जी माइनस जे बीटा, दैट इज इंडक्टिव नेटवर्क, पावर फैक्टर लैगिंग. सो इसकी अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे, सो दिस इज V, दिस इज I विल लैग वोल्टेज बाय 5 डिग्री. सेकेंड केस हमें क्या मिला था, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, y इज इक्वल्स टू z, दैट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव नेटवर्क. सो इस केस में वोल्टेज और करंट क्या होंगी, सेम फेज में होंगी, इजंट इट? पावर फैक्टर यूनिटी. नाउ थर्ड केस क्या था, ओमेगा इज ग्रेटर दैन ओमेगा नॉट, सो y इज g plus of j beta because beta c is greater than beta l here. So this is capacitive network. इस केस में अगर आप प्लॉट करोगे फेजर डायग्राम V and this is I will lead voltage by how much, 5 डिग्री. तो अगर आप पावर फैक्टर वर्सेस ओमेगा ड्रॉ करोगे तो इसकी ग्राफ देखो, लैगिंग से लीडिंग की ओर जा रही है. सो दिस विल बी this is plus of 90 degree and this is minus of 90 degree, omega naught, omega, this portion is lagging, this is leading, this is unity. Okay. So this is about how admittance, susceptance, that is beta, current and power factor varies as we vary the frequency in case of parallel RLC circuit. Okay. Now let us move to quality factor, bandwidth and upper and lower half frequency in case of parallel resonating circuit, parallel resonance और parallel RLC circuit. एक चीज़ ध्यान रखो, मैं यहाँ डिटेल्स में नहीं जाने वाली हूँ बिकॉज देखो क्वालिटी फैक्टर ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है और बैंडविड्थ जितनी भी उसकी थ्योरी रिलेटेड पार्ट थी वो सारी हमने देख ली है. अब क्या करना है, हमें सिर्फ लिखना है इस केस में, पैरेलल आरएलसी के केस में हमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या मिलती है. सी, क्वालिटी फैक्टर इन केस ऑफ सीरीज क्या थी, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्टिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज. इस केस में क्या हो जाएगी, देखो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट हो जाएगी. ठीक है, सो Q यू विल गेट इट एज IL बाई IR. रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होगा, IL और IC, और IC बाई IR. अब यहाँ से देखो क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज निकल के आएंगी. IL को क्या लिख सकते हो आप, V बाई XL एंड दिस इज V बाई R. सो एंड IC बाई, देखो IC बाई IR को क्या लिख सकते हो, V बाई XC
एंड वी बाई आर। तो यहाँ से क्योंकि दो वैल्यू और निकल के आई, दैट इज आर बाई एक्सएल एंड आर बाई एक्सी, इजंट इट। ये भी क्योंकि वैल्यू निकल के आई। अब और देखो, 1/xl को क्या लिखते हो आप, बीटा एल, एंड 1/r को क्या लिखते हो, जी लिखते हो। सो ऑल्सो यू कैन राइट इट एज बीटा एल बाई जी और बीटा सी बाई जी। अगेन देखो, Q इज इक्वल्स टू एक्सएल को ओमेगा एल लिखते हो, सो आर बाई ओमेगा एल और आर इंटू ओमेगा सी। ओमेगा को अगर आप पुट करोगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√/LC, देन यू विल गेट क्वालिटी फैक्टर एज R बाई एल √/L बाई सी, और इस ये कट के क्या हो जाएगा, R बाई √/C बाई L। तो देखो इतनी सारी आपको क्वालिटी फैक्टर्स की फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। अब आते हैं बैंडविड्थ पे। देखो बैंडविड्थ इस केस में क्या निकल के आती है, 1/RC इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। एंड अगेन Q इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ, यहाँ पे भी सेम होता है ये चीज़, एंड जीटा इज 1/2Q। तो ये सारी वैल्यूज़ आप याद कर लेना। अगर आपको निकाल के देखना हो तो आप निकाल के देख सकते हो, बट इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज हम गेट के लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सब एक बार हमने जो सीख लिया उसे बार बार डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वैसे भी डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, आपको बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, देखो आई आर इज इक्वल्स टू वी आर बाई आर, दिस इज वी बाई आर और आई आर बाई आर। तो ये आई मीन्स रेजोनेंट, एट रेजोनेंस क्या हो रही है, जो हमारी करंट हो रही है सोर्स की, वो पूरी की पूरी किसके थ्रू फ्लो कर रही है, सिर्फ रजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रही है। एंड आई एल, you know that VL by JXL, so this is minus J by V by XL, this is IR omega naught L, this R omega naught L is nothing but minus JQI, and IC VC by minus J of XC, J into V by XC, you can write it as JIR omega naught C, and this value is Q R omega naught C, so this is J Q I. Again, see, in case of parallel RLC circuit or parallel resonance, what is happening here, current is getting amplified. So Q is amplification factor, again means by this much, by the value of Q, the current through inductor and current through capacitor gets amplified, और ये क्या होगी, हमारी सोर्स करंट से ज़्यादा होगी। तो हमारी जो सीरीज आरएलसी था उस केस में क्या हो रहा था, वोल्टेज मैग्निफिकेशन हो रहा था, एंड इस केस में पैरेलल के केस में क्या हो रहा है, हमारा करंट मैग्निफिकेशन हो रहा है। ओके, एंड देखो सीरीज के केस में जो एल और सी कनेक्टेड था सीरीज में, वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू हो रही थी वो ज़ीरो हो जा रही थी, सो दिस विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे देखो दिस कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज इन पैरेलल, तो अगर इन दोनों की बीटा सी माइनस बीटा एल यहाँ पे ज़ीरो होगी, दैट इज़ इसकी जो ओवरऑल एडमिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मीन्स ये तो एलसी जो सर्किट होगा वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट सर्किट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज टैंक सर्किट। सो राइट डाउन टैंक सर्किट। तो चलो पहले टैंक सर्किट की डायग्राम मतलब सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आर एल एंड सी।
सो इस टाइप की सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट बोलते हैं। ओके, देखो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलली। सो ओवरऑल हमें एडमिटेंस ही निकालना है अब इसके इसमें भी। दिस इज y1, लेट अस से इस ब्रांच की जो एडमिटेंस है वो ओवरऑल y1 है एंड इस ब्रांच की क्या है, y2 है। देखो y1 क्या है, y1 इज 1/r प्लस जे एक्सएल। इसे अगर आप रेशनलाइज करोगे, जे एक्सएल r माइनस जे एक्सएल, यू विल गेट इट एज r/r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ना, माइनस ऑफ जे एक्सएल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो इसे आप क्या बोलोगे, G1 and this is at beta L. Okay, now Y2. Y2 is simply what we are getting it as omega naught C. तो ये क्या हो जाएगा, हमारे बीटा C की वैल्यू हो जाएगी। ओके, दिस इज J omega naught C ना, तो omega naught C will be our beta C. So overall Y is Y1 plus Y2, that is G1 plus minus J of beta L plus of J beta C. तो देखो यहाँ से G1 plus J beta C minus beta L, ये हमें क्या मिली, ओवरऑल एडमिटेंस की वैल्यू मिली, मीन्स ओवरऑल एडमिटेंस ऑफ द टैंक सर्किट। सो एट रेजोनेंस इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में भी क्या होगा, बीटा सी इज इक्वल्स टू बीटा एल हो जाएगा एट रेजोनेंस। ठीक है, सो बीटा सी की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट सी, एंड बीटा एल की वैल्यू क्या है, एक्सएल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल को आप रिप्लेस कर दो ओमेगा नॉट एल से, so omega naught c is equals to omega naught l divided by r square plus omega naught square l square. This will be r square plus omega naught square l square is equals to 1 l by c. So omega naught square is equals to 1 by this l will goes here, 1 by lc minus r square by l square. सो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, रूट ओवर 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ टैंक सर्किट। अब देखो आइडियल टैंक सर्किट क्या होती है, आइडियल टैंक सर्किट में, आइडियल टैंक सर्किट इज सिंपली इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज आइडियल टैंक सर्किट। तो इस केस में आइडियल टैंक सर्किट क्या हो जाएगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ आर विल गेट्स इक्वल्स टू 0। तो अगर आप आर की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो सिंपली हमें ओमेगा नॉट क्या मिल जाएगी, 1 बाई रूट ओवर एल सी। ओके, सो राइट डाउन इन केस ऑफ आइडियल टैंक सर्किट पुट आर इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से एफ नॉट आप निकालोगे तो क्या होगा, 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर सी बाई एल। ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ओके, अब चलो इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। तो देखो अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इधर से IC जा रही है मानो, और इधर से जो करंट जा रही है वो IL जा रही है। अब इम्पिडेंस देखना है, इसकी इम्पिडेंस हमने Z1 मानी है। ओवरऑल जो इम्पिडेंस है दैट इज ZDY। ये DY क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी पहले ये देखो। तो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस जे एक्सएल। और देखो यहाँ से अगर आप साइन ऑफ थीटा निकालोगे, बिकॉज देखो इसकी ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ करोगे Z1 की, तो दिस विल बी, दिस इज Z1, दिस इज एक्सएल एंड R, और ये एंगल थीटा। सो साइन थीटा विल बी हियर, from here is XL by Z1, isn't it? Cos theta R by Z1 and tan theta XL by
R. नाउ सी फेजर डायग्राम, इसमें भी हम लोग रेफरेंस किसको लेंगे, वोल्टेज फेजर को लेंगे। अब देखो ये जो IC होगी वो तो 90 डिग्री लीड करेगी वोल्टेज से, वोल्टेज फेजर से, isn't it? But this IL will lag by how much? Power factor angle. So this is theta, let us say. Theta is the angle by which IL is lagging from voltage phasor. तो अगर आप इसकी दो कंपोनेंट लिखोगे तो इस वाले इधर साइड वाले जो कंपोनेंट होगी वो क्या हो जाएगी, IL साइन ऑफ थीटा, एंड इधर साइड की जो कंपोनेंट होगी दिस विल बी IL कॉस ऑफ थीटा, इजंट इट? अब देखो इन दोनों की मैग्नीट्यूड ये सेम हो जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये सेम होगी और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी एट रेजोनेंस। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगी, IC इज इक्वल्स टू IL साइन ऑफ थीटा। IC की वैल्यू क्या है, V बाई XC, एंड IL इज V बाई Z1। साइन थीटा अभी हमने निकाला था क्या, XL बाई Z1। सो Z1 स्क्वायर, this V will cancel out, will get XL into XC, that is Z1 square is omega naught L into 1 by omega naught C at resonance. These two are what, resonant frequency, because we are talking at resonance. Okay, ठीक है? So Z1 we are getting at root over L by C. ओके, नाउ एक और चीज़ यहाँ पे इक्वल हो रही है, देखो ये जो IR की वैल्यू और I की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट द IL cos theta. So you can write I is equals to IL cos of theta. I is V by Z1 IL and cos theta R by Z1. So V by I is Z1 square divided by R, and this V by I is what, Z dy, which I have defined Z dy is equals to L by R C. So overall impedance we are getting as L by R C. तो यहाँ से अगर हम क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, रिएक्टिव पावर कंपोनेंट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर कंपोनेंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर कंपोनेंट क्या क्या है, देखो IC फेजर है और IL साइन थीटा है, ये IL कॉस थीटा तो I के बराबर ही है ना, एंड डिवाइडेड बाय I, दैट इज एक्टिव पावर कंपोनेंट। तो IC बाई I और यू कैन राइट IL साइन थीटा बाई I. सो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। देखो क्वालिटी फैक्टर को और किस टर्म से लिख सकते हो आप, दिस इज V बाई XC and this I is V by Z dy, so this is Z dy divided by XC. again देखो Z dy XC को आप क्या लिखोगे, 1 by omega C, and Z dy is from here L by RC into omega C. So quality factor in case of tank circuit also we are getting as omega L by R. अब आइडियल टैंक सर्किट में क्या होगा, देखो जेड डी वाई जो होगी हमारी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, बिकॉज क्या होगा आइडियल टैंक सर्किट में तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे और इन दोनों की जो बीटा की वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो फॉर आइडियल टैंक सर्किट जेड डी वाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, अब आते हैं ये जेड डी वाई होता क्या है, दिस जेड डी वाई वी कॉल्ड इट एज डायनेमिक इम्पिडेंस। So write down the definition of dynamic impedance as it is the impedance offered by the network to the source
at the resonance condition and it is purely resistive in nature. Okay, so डायनेमिक इम्पिडेंस क्या है? इम्पिडेंस कब, इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय कब, जब हमारी जो कंडीशन हो वो क्या हो, एट रेजोनेंस पे हम लोग वर्क कर रहे हो. ओके, और एट रेजोनेंस पे क्या होता है, ये जो जेड डी वाई की वैल्यू मिलेगी वो प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर होगी. ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ सर्किट इज रिमेनिंग, दैट इज पैरेलल सीरीज और सीरीज पैरेलल सर्किट. So write down series parallel circuit. After this, the resonance part will be completed. Only we do is its numericals based on resonance in the next lecture. Okay. So series parallel circuit is like this. Say this is R1, this is R2, this is L and C. This is VT. यहाँ पे जो एडमिटेंस है y and let us say overall admittance y, this is y1 and this is y2. So overall admittance will be y1 plus y2. y1 will be g minus j beta l and y2 will be g2 plus of j beta c. So y will be g1 plus g2 plus of j beta c minus beta L. So at resonance what happened? Beta C is equals to beta L. So at resonance value of beta C is equals to value of beta L. This is I am talking about magnitude. So beta C की वैल्यू कैसे क्या होगी? देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये R माइनस जे R2 माइनस जे ऑफ एक्स सी होगा. इसे आप रैशनलाइज करोगे R2 प्लस जे ऑफ एक्स सी. दिस इज R2 प्लस जे ऑफ एक्स सी. इसे जब आप रैशनलाइज करोगे सो यू विल गेट R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर and plus of j xc by R2 square plus xc square and this is nothing but the value of beta c. Similarly मैंने पिछले थोड़ी देर पहले ही बीटा एल की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई थी. सो बीटा सी इज xc डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर and this is xl divided by R1 square plus xl square. So xc is what? 1 by omega naught c and this is R2 square plus 1 by omega naught square c square. This is xl is omega naught L and this is R1 square plus omega naught square L square. तो यहाँ से जब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे then you will get f naught as 1 by 2 pi root over LC. This is R1 square minus of L by C divided by R2 square minus of L by C. देखो इस सर्किट के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना आप, that the above circuit will be at resonance at any frequency. किसी भी frequency पे ये resonance अचीव कर लेगा provided, देखो provided क्या होगा, R1 square is equals to R2 square is equals to L by C. और क्या होगा, R1 इज इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू L बाई C. चलो इसका प्रूफ देखते हैं. देखो यार हमारी ये इक्वेशन निकल के आई थी 1 बाई ओमेगा नॉट सी L बाई सी प्लस ऑफ 1 बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट L बाई सी प्लस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर. देखो ये R2 स्क्वायर था यहाँ पे. अब आप पूछोगे मैंने यहाँ क्या L बाई सी क्यों लिखा, ये R2 स्क्वायर था और ये R1 स्क्वायर था, इजंट इट. थोड़ी देर पहले ही मैंने कैलकुलेट किया था. तो R2 स्क्वायर की जगह मैंने L बाई सी पुट किया और R1 स्क्वायर की जगह भी L बाई सी पुट किया. सो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट इट एज 1 बाई ओमेगा नॉट L प्लस 1 बाई ओमेगा नॉट सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी प्लस ओमेगा नॉट L 1 is equals to 1. तो यहाँ से आप देख रहे हो दैट इज बीटा सी इक्वल्स टू बीटा एल व्हेन मीन्स जब R1 और R2 की वैल्यू रूट ओवर L बाई सी हो रही है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल हो रही है. मीन्स बीटा सी की वैल्यू बीटा एल के बराबर हो जा रही है
मीन्स सर्किट जो हो जा रही है हमारी वो एट रेजोनेंस पे हो जा रही है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या होगा, अगर R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इक्वल्स टू L/C दिया हो तो जो एबव सर्किट है वो रेजोनेंस पे होगा, प्रोवाइडेड कोई भी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई हो। ओके, सो आज हमने क्या क्या देख लिया, पैरेलल रेजोनेंस देख लिया, क्वालिटी फैक्टर देख ली, उस केस में बैंडविड्थ देख ली, सीरीज पैरेलल सर्किट देखा हमने, डायनेमिक इम्पिडेंस देखा। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजोनेंस। थैंक यू।